کہا جاتا ہے کہ ایک وقت تھا جب زمین جن کے نور اور آگ سے چمکتی تھی، پتھروں میں تراشے ہوئے شہر یہ کوئی افسانہ نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے یہی ان کی حقیقت تھی۔ دنیا صرف آباد ہی نہیں تھی بلکہ اس پر حکومت بھی تھی، اور حکمران خاموش چرواہے نہیں تھے، وہ آگ کے بدن رکھنے والے تھے، لمبی عمر پانے والے بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنی قوتوں کا استعمال کیا، غائب ہونے کے لیے، اڑنے کے لیے، مخلوق کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے۔ آج ان کے شہر غائب ہو چکے ہیں، لیکن ممکن ہے ان کے نشان اب بھی ان ملبے کے نیچے چھپے ہوئے ہوں جو انسان سمجھ نہیں پاتا۔ جن میں ایسے بادشاہ ابھرے جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنے لیے عبادت کا مطالبہ کیا، انہوں نے بت کھڑے کیے، جادوئی الفاظ پڑھے، ڈر کے ذریعے لوگوں کو جھکایا۔ جادو ایک سودے کی چیز بن گیا، تاریک رسمیں پوشیدہ کمروں میں ادا ہونے لگی۔ کچھ کا دعویٰ تھا کہ وہ ایسے دروازے کھولتے ہیں جو بند رہنے چاہیے تھے، ایسا علم جو چھپا رہنا چاہیے تھا اب اسے سب سے زیادہ قیمت دینے والے کو بیچا جانے لگا۔ انہوں نے کمزور قبیلوں کو غلام بنایا، انہیں سپاہی اور خادم بنا لیا۔ وہ معصوم جن جو اب بھی اپنے رب کو یاد رکھتے تھے چھپنے پر مجبور ہو گئے، انہیں ان زمینوں سے نکال دیا گیا جو کبھی ان کا گھر تھی۔ تو آخر یہ سارا فساد شروع کیسے ہوا؟ ایسی بغاوت کس چیز نے پیدا کی جو اتنی طاقتور اور اتنی تباہ کر دینے والی تھی کہ فرشتوں کو بھی خوف ہوا کہ کہیں یہ سب دوبارہ نہ ہو؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آگ سے بنی یہ مخلوق کیسے گری، اور کیسے ایک ایسا جن جو کبھی آسمانوں میں تعریف پاتا تھا انسانیت کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ اسلامی علماء کے مطابق وہ بالکل انسانوں کی طرح مختلف زبانیں بولتے تھے۔ ان کے شہر تصور سے پرے تھے کیونکہ وہ دوسری جہاتوں اور پہلوؤں میں رہتے تھے جو ہماری تین بڑی دنیا سے بہت مختلف تھے۔ وہ ایک قسم کی انرجی جیسی آگ سے پیدا کیے گئے تھے جس کا کوئی عام جسمانی وزن نہیں تھا، اسی لیے ان کا تصور کرنا مشکل ہے۔ کچھ جن عبادت اور اطاعت میں قائم رہے، یہ وہ نیک، خاموش اور فرما بردار تھے جو چپ چاپ رہتے تھے، لیکن دوسرے اپنے اندر جھانکنے لگے۔ انہوں نے اپنی قوت دیکھی اور اسی سے محبت کر بیٹھے۔ انہوں نے اپنی آزادی دیکھی لیکن اسے غلط سمجھا۔ وہ فرشتوں سے حسد کرنے لگے، وہ پوچھنے لگے کہ ہمیں آسمانوں میں کیوں نہیں اٹھایا گیا، ہم زمین سے کیوں بندھے ہوئے ہیں جبکہ فرشتے آسمانوں میں اڑتے ہیں۔ کچھ دل سیاہ ہونے لگے، وہ ایک دوسرے کو چیلنج کرنے لگے۔ بالکل انسانوں کی طرح انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ زمین پر ان کی قوموں اور تہذیبوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے، قبیلے قبیلوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، رہنما ظالم بن گئے، بالکل انسانی حکمرانوں کی طرح۔ اسی فساد کے درمیان ایک شخص ابھر کر سامنے آیا، ایک ایسا جن جس کے پاس بہت قوت تھی اور بہت زیادہ عبادت تھی۔ اس کا نام تھا عزازیل۔ جب اس کی قوم فساد میں ڈوب رہی تھی، وہ اطاعت میں اوپر اٹھ رہا تھا، اس نے بغاوت میں حصہ نہیں لیا، وہ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوا اور اسی وجہ سے اسے عزت دی گئی۔ لیکن عزازیل اپنی قوم سے اتنا مختلف کیوں تھا اور اس کی کہانی اتنے اندھیرے میں کیسے بدل گئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس جنگ کو سمجھنا ہوگا جس نے زمین کو چیر کر رکھ دیا، وہ جنگ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جب جن اپنی منمانی کرنے لگے، زمین پر فساد کرنے لگے، جادو ایک سودے کی چیز بن گیا، کمزوروں کو غلام بنایا گیا، اور جو اللہ کے فرما بردار تھے وہ چھپنے پر مجبور ہو گئے۔ جو دنیا کبھی آگ اور آزادی کی زندہ دنیا تھی، وہ نفس، گھمنڈ اور خواہش کی جنگ گاہ بن گئی۔ تو اللہ ان سب کو دیکھ کر غافل نہیں ہوا۔ فرشتے خاموشی سے دیکھ رہے تھے، دیکھتے رہے، یہاں تک کہ حکم آ گیا۔ اب زمین ایک ایسی جنگ دیکھے گی جیسے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، آگ کی مخلوق اور نور کے لشکر کی جنگ۔ ان تمام واقعات کے درمیان عزازیل کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی قوم کس طرح گناہ میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ اس کا دل غصے سے بھر گیا، اور ایک اور چیز سے بھی، اپنے آپ کو ثابت کرنے کی خواہش سے۔ نہ صرف جن کے سامنے بلکہ فرشتوں کے سامنے بھی وہ تیار تھا کہ اپنے ہی قسم کے خلاف لڑے۔ وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ آگ سے پیدا ہوئی مخلوق بھی وفادار ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب کوئی بندہ یہ سوچنے لگے کہ وہ صرف بندہ نہیں رہا، وہ امتحان قریب آ چکا تھا، اور عزازیل اس امتحان کے بالکل درمیان میں کھڑا تھا۔ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ مجبوراً عبادت کرنے والی مخلوق نہیں تھا، اس نے خود سے عبادت کو چنا تھا، اور اس میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ صرف عبادت میں ہی نہیں، معرفات اور اللہ کی پہچان میں بھی، یہاں تک کہ کہا گیا کہ وہ فرشتوں کو درس دیتا تھا۔ اس نے اسے قابل تعریف بنا دیا، لیکن خطرناک بھی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی عبادت کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ جب فرشتے اسے ایک رہنما کی طرح دیکھنے لگے تو شاید اس جنگ نے جو اب وہ لڑنے جا رہا تھا اس کے دل میں تکبر کا پہلا بیج بو دیا۔
اللہ सुभान व तआला ने उसे हुक्म दिया कि उन जिन के खिलाफ लड़े जो फसाद फैला रहे थे और इताअत से इनकार कर चुके थे। उसकी क़ियादत में फरिश्तों का एक अजीम लश्कर जमा किया गया। जल्दी ही वो जमीन पर उतरेंगे और ये जंग शुरू होगी। लेकिन जिन की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी थी। एक रिवायत में आता है कि हर 10 मखलूक में जिसे इख्तियार दिया गया 9 जिन थे और सिर्फ एक इंसान। अगर आज इंसानियत की तादाद 10 अरब के करीब है तो फिर उनकी तादाद 90 अरब तक पहुंच सकती थी। और चूंकि उनमें से अक्सर बागी हो चुके थे तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंग कितनी बड़ी रही होगी। एक और रिवायत में आता है कि शैतान की 70,000 औलाद थी और हर औलाद की भी 70,000 औलाद थी। अरबी जबान में 70 का अदद अक्सर बहुत बड़ी तादाद के लिए आता है। और चूंकि शैतान भी जिन में से था इसलिए उनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ती थी। उनकी उम्र सदियों हत्ता के हजारों साल तक फैलती थी। उनके खानदान और कबीले बेहद बढ़ते चले गए। ये सब देखते हुए जिन की आबादी अरबों में होना कोई अजीब बात नहीं थी। लेकिन उनका सुनहरा दौर खत्म होने को था। पर उनमें से एक मुख्तलिफ था, अज़ाज़ील। वो दिन रात नमाज पढ़ता था, रोजे रखता था, रोता था, सजदों में गिरता था। फरिश्ते उसे नोटिस करने लगे। आसमान उसके जिक्र से गूंजने लगा। कहा गया कि किसी जिन ने इससे पहले इतना ऊंचा रुतबा हासिल नहीं किया था। अज़ाज़ील खुद भी यही समझने लगा। उसे लगा कि वो सिर्फ एक बंदा नहीं बल्कि एक मिसाल है। लेकिन जब दिल ये समझने लगे कि वो सबसे ऊंचा है तो कितनी देर लगती है उसे ये सोचने में कि उसे और ज्यादा मिलना चाहिए। यही सोच दुनिया के मुस्तकबिल को बदलने वाली थी और इम्तिहान अभी शुरू ही हुआ था। रिवायतों के मुताबिक उन्होंने उन पैगंबरों और रसूलों को भी कत्ल कर दिया जो अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए भेजे थे। उनका फसाद और बढ़ गया। शहर गिर गए, बादशाह कत्ल हुए, आसार टूट गए और उनके झगड़े और गहरे होते गए। कहा जाता है कि एक से ज्यादा नबी उनकी तरफ भेजे गए। हर बार अल्लाह ने उन्हें डराया, समझाया, लेकिन उनका तकब्बुर और बढ़ता चला गया। ये फसाद रूहे जमीन में एक बीमारी की तरह फैल गया। फरिश्ते जो ये सब देख रहे थे अल्लाह के अर्श की तरफ रुजू हुए और अज़ाज़ील सिर्फ तमाशाई बनकर नहीं रहने वाला था। वो कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी कर रहा था। आग से पैदा हुआ एक मखलूक उन मखलूक के दरमियान चल रहा था जो नूर से पैदा की गई थी। वो अकेला जिन था जिसे इतना रुतबा दिया गया था। वो 2 जहानों की सरहद पर खड़ा था। नीचे फसाद, ऊपर इताअत। लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। कभी वो सजदे में रोता था तो कभी अपने रब को नाराज करने के खौफ से कांपता था। लेकिन अब उसकी चाल बदल चुकी थी। अब वो उस लश्कर की क़ियादत करेगा जो जिन के बादशाहों को कुचल देगा और उन्हें उनकी औकात याद दिला देगा। जब आसमानी लश्कर जमीन पर उतरा, जमीन कांप उठी। ऐसी रोशनी जिसे दुनिया की आग ने पहले कभी नहीं देखा था। आसमान चीर कर नीचे आई। फरिश्ते ऐसे सुकूत के साथ चल रहे थे जो रौब पैदा कर रहे थे। उनके पर आफाक को ढांक रहे थे। उनके चेहरों पर कोई जज्बात नहीं थे, सिर्फ इताअत। और उस लश्कर के आगे अज़ाज़ील खड़ा था। नूर से बनी मखलूक के दरमियान सिर्फ वो आग से बना हुआ था। वो पूरे यकीन के साथ खड़ा था। उसे लगता था कि ये लम्हा उसी के लिए है। उसने समझा कि उसकी इबादत ने उसे अपनी कौम से ऊंचा कर दिया है और शायद फरिश्तों के बराबर ला खड़ा किया है। लेकिन फरिश्ते अपनी हद जानते थे और अज़ाज़ील अभी भी सीख रहा था। जब फसादी जिन्न ने इस लश्कर को देखा तो वो खौफ से कांप उठे। फिर भी उन्होंने समझा कि उनका जादू उन्हें बचा लेगा। उनकी राख से बनी हुई सल्तनतें कायम रहेंगी। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो कोई कुव्वत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जंग शुरू हो गई। आसमान गरजने लगे, जमीन फट गई, नूर और आग टकराए, पहाड़ टूट गए, समंदर उबलने लगे, हत्ता के हवा भी उस गैबी जंग की दहशत से लरज उठी। फरिश्ते नाकाबिले तसव्वुर कुव्वत के साथ वार कर रहे थे। वो सोच से तेज चल रहे थे और इस तूफान के मरकज में अज़ाज़ील था। वो ऐसे लड़ा जैसे कोई जिन उससे पहले कभी न लड़ा हो। गुस्से और निशाने के साथ वो लश्करों को चीर कर रख रहा था। हर वार के साथ वो अल्लाह का नाम पुकारता था। उसकी आग नूर की खिदमत कर रही थी। फरिश्ते उसके गिर्द कामिल निजाम के साथ हरकत कर रहे थे। वो कोई अल्फाज नहीं बोलते थे, उनमें हिचकिचाहट नहीं थी। लेकिन अज़ाज़ील अंदर ही अंदर तकब्बुर के साथ गरज रहा था। शहर गिरते चले गए, आग के तख्त राख बन गए। वो बादशाह जो खुद को खुदा कहते थे अपने ही मंदिरों के नीचे दफन हो गए। उनका जादू टूट गया, उनकी सिहर की ताकत खामोश हो गई। जमीन जो इंसाफ के लिए चीख रही थी अल्लाह की कुदरत से पाक कर दी गई और जब गर्द बैठ गई तो खामोशी लौट आई। जंग खत्म हो चुकी थी। जो थोड़े बहुत जिन बच गए उन्हें जमीन की गहराइयों में, पोशीदा जहानों में, उन पर्दों के पीछे ढकेल दिया गया जो इंसानी आंखों से ओझल है। आज जो जिन सुनसान पहाड़ों, दूर दराज मकामात और समंदरों की गहराइयों में रहते हैं, कहा जाता है कि वो उन्हीं के वारिस हैं।
फसादी जिन अब आजाद जमीन पर घूम नहीं सकते थे। जमीन वापस ले ली गई थी। एक नया दौर करीब था। फरिश्ते अपना फर्ज अदा करके वापस आसमानों की तरफ लौट गए, लेकिन एक रह गया, अज़ाज़ील। उसकी बहादुरी की तारीफ की गई, उसकी वफादारी को सराहा गया, उसे इज्जत दी गई। उसने जंग की क़ियादत की थी, वो जीत चुका था। अब वो अपनी कौम से ऊपर खड़ा था, या फिर कम से कम उसे ऐसा लगता था। उसे लगता था कि वो इताअत की इंतहा तक पहुंच गया है। उसने समझा कि उसकी आग उसे इस काबिल बनाती है कि वो फरिश्तों के दरमियान खड़ा रहे, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि एक नई मखलूक की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये मखलूक ना नूर से होगी और ना आग से, ये मिट्टी से होगी। और अगरचे अज़ाज़ील जंग में फतह पा चुका था, उसका दिल उस चीज के लिए तैयार नहीं था जो अब आने वाली थी। पुरसुकून जमीन पर एक गुफ्तगू शुरू हुई। ये बगावत की बात नहीं थी, ये हैरत, सोच और कुछ खौफ की बात थी। फरिश्ते जो दुनिया के उभरने और गिरने को देख चुके थे, अब अल्लाह के नए हुक्म की तरफ मुतवज्जो हुए। उन्होंने जिन का फसाद देखा था, उनका खून बहाना देखा था, उनका तकब्बुर, उनकी बगावत देखी थी, और अब एक नई मखलूक का जिक्र हो रहा था। एक ऐसी मखलूक जो जमीन की वारिस बनेगी, एक खलीफा। फरिश्ते ने पूछा, क्या तू इसमें ऐसी मखलूक को रखेगा जो फसाद फैलाएगी और खून बहाएगी, जबकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। ये तकब्बुर नहीं था, ये बगावत नहीं थी। फरिश्ते अल्लाह की हिकमत पर सवाल नहीं उठा रहे थे, वो सिर्फ वो कह रहे थे जो उन्होंने देखा था। जमीन पर फ्री विल वाली मखलूक पहले ही जंग और खून से भर चुकी थी। कुछ रिवायतों में आता है कि अज़ाज़ील भी उस सवाल के सिलसिले में था और फरिश्तों के दरमियान बात हो रही थी। उन्हें वो पोशीदा हिकमत मालूम नहीं थी जो अल्लाह जानता था। अल्लाह ने अपने मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों को बताया कि जमीन से मिट्टी ली जाएगी और एक नई मखलूक बनाई जाएगी। फरिश्ते जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में गए। किसी ने सख्त पत्थर वाली मिट्टी ली, किसी ने नर्म वादियों की मिट्टी, किसी ने सियाह मिट्टी, किसी ने सुर्ख, किसी ने सफेद। इसी तरह इंसान की फितरतों और मिजाजों का तनावु उस मिट्टी में जमा कर दिया गया। उस मिट्टी को मिलाया गया, गूंदा गया और फिर उसे सूखी, खोखली, सख्त मिट्टी की सूरत दी गई। एक जिस्म बना दिया गया, लेकिन अभी उसमें रूह फूंकना बाकी था। वो जिस्म खामोश पड़ा था, बेजान। इसी लम्हे अज़ाज़ील वहां आया। वो जिन के खिलाफ अपनी अजीम फतह के बाद आया था और उसके अंदर उस जीत का घमंड बढ़ता जा रहा था। ये वो छुपा हुआ तकब्बुर था जिसका जिक्र मुफस्सिरीन करते हैं जब अल्लाह फरमाता है, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अज़ाज़ील उस नई सूरत के गिर्द घूमा। उसने उसका चेहरा देखा, उसके कानों को देखा, फिर वो इस मिट्टी के जिस्म के अंदर दाखिल हुआ। रूह तो अभी नहीं दी गई थी, लेकिन वो उसके अंदर की खाली जगहों में फिरने लगा, उसके रास्तों को समझने लगा। उसने सोचा, ये कमजोर मखलूक जो मिट्टी से बनी है, जिसमें सुराख है, भूख है, गुस्सा है, जल्दबाजी है, ये बहुत जल्द टूट जाएगी। एक दिन मैं इसी की कमजोरी से इसे गुमराह करूंगा। इस जिस्म के अंदर घूमना उस हकीकत की तरफ इशारा करता था जो बाद में हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई कि शैतान इंसान के अंदर उसी तरह दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। रूह फूके जाने से पहले ही अज़ाज़ील इंसान के अंदर के रास्ते समझ रहा था। वो प्लान बना रहा था कि एक दिन कैसे वसवसा डालेगा, कैसे वो गुमराह करेगा। लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। इम्तिहान करीब था। एक नई मखलूक आ रही थी, एक ऐसी जो जिन की जगह जमीन पर चलेगी। अज़ाज़ील ने अपने ही किस्म के खिलाफ जंग लड़ी थी। उसने अपने आप को साबित किया था। वो फरिश्तों के साथ खड़ा रहा था। उसके जहन में अब किसी और मखलूक की कोई जरूरत नहीं थी। दुनिया पहले ही पाक कर दी गई थी। उसे लगता था कि उसने अपना मकाम हासिल कर लिया है, अब और क्या चाहिए। लेकिन उसके दिल में एक सवाल बढ़ता गया, ये खलीफा कौन होगा, और सबसे अहम बात, इसका रुतबा क्या होगा। जब फरिश्ते अल्लाह की हिकमत के आगे झुक रहे थे, अज़ाज़ील का दिल अंदरूनी आग से जल रहा था। उसने जबान से कुछ नहीं कहा, उसने खुला एतराज नहीं किया, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ चुका था। कुछ रिवायतों के मुताबिक उसने फरिश्तों से पूछा, अगर अल्लाह इस मखलूक में रूह फूंक दे और इसे हमसे भी ऊंचा रुतबा दे दे तो तुम क्या करोगे। उन्होंने जवाब दिया, ये कैसा सवाल है, हम तो अपने रब का हुक्म सुनेंगे, ईमान लाएंगे और इताअत करेंगे। तब अज़ाज़ील समझ गया कि वो अकेला होगा। फरिश्ते कभी नाफरमानी नहीं करेंगे। सिर्फ वो था जो हुक्म से बाहर निकल सकता था, और वो इस ख्याल से खेलता रहा। मिट्टी का वो जिस्म अब भी खामोश पड़ा था, बेजान, लेकिन जल्द ही उसमें सांस चलने वाली थी। अज़ाज़ील को अभी इस मखलूक का नाम भी नहीं मालूम था, लेकिन वो उसे पहले ही नफरत करने लगा था। फिर वो लम्हा आया जिसने माजी और मुस्तकबिल के दरमियान एक साफ लकीर खींच दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस मिट्टी में रूह फूंकी। ये सिर्फ हवा नहीं थी, सिर्फ हरकत नहीं थी, ये रूह थी, हुक्म था, जिंदगी थी, एक ऐसा राज जो सिर्फ अल्लाह अता करता है। अचानक वो बेजान जिस्म हिला,
मिट्टी नरम हुई, आंखें खुल गई, सीना उठने लगा, गिरने लगा। जिस्म ने इरादे के साथ हरकत की, इंसान पैदा हो गया। ना किसी रहमी से, ना इवोल्यूशन के जरिए, बल्कि अल्लाह की कुदरत के सीधे अमल से। ये आदम अलैहिस्सलाम थे, अपनी किस्म के पहले जमीन से बने हुए, लेकिन जमीन से ऊपर रुतबा दिए गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में बताया। रूह आदम के सर में दाखिल हुई, फिर उनकी आंखों में, चेहरे में, नाक और मुंह में, फिर उन्हें छींक आई। जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े थे और उन्होंने कहा, ए आदम, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे बंदे, मेरी रहमत तुझ पर हो। जब रूह उनकी आंखों तक पहुंची तो उन्होंने जन्नत का फल देखा। उन्हें देखकर उनके अंदर फौरन खाने की ख्वाहिश पैदा हुई, लेकिन रूह अभी उनकी टांगों तक नहीं पहुंची थी। उनका जिस्म अभी नीचे से मिट्टी ही था, वो उठ नहीं सकते थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए आदम, जल्दी मत करो। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, इंसान बहुत जल्दी करने वाला है। अज़ाज़ील ये सब देख रहा था, उसका दिल तंग होता गया। उसने इस जिस्म को पहले देखा था, इसकी मिट्टी पर हंस चुका था, लेकिन अब वो जिस्म उठ रहा था, बोल रहा था, सीख रहा था, और सबसे बड़ा धक्का अभी बाकी था। अल्लाह सुब्हान व तआला ने वो हुक्म दिया जिसकी गूंज कयामत तक रहेगी, आदम को सजदा करो। ये कोई मशवरा नहीं था, ये रब्बुल आलमीन का हुक्म था, ये इम्तिहान था, फरिश्तों के लिए भी और अज़ाज़ील के लिए भी। फरिश्ते ने देर नहीं की, वो फौरन सजदे में गिर गए, उनके चेहरे जमीन को लग गए। इसलिए नहीं कि आदम माबूद थे, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया था। उनका सजदा आदम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं, अल्लाह के हुक्म के लिए था। आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त इताअत का मरकज बना दिए गए थे, लेकिन अज़ाज़ील नहीं झुका। उसकी निगाह उस मिट्टी के इंसान पर जम गई, उसके पांव जमे रहे। तकब्बुर ने उसे जंजीर बनाकर रोक दिया। जो मखलूक हजारों मर्तबा झुकी थी, वो अब एक सजदे से इनकार कर रही थी, और उसी इनकार के साथ सदियों की इबादत टूट कर बिखर गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूछा, तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा ना करे? अज़ाज़ील ने नरमी के साथ जवाब नहीं दिया, बल्कि जहर के साथ जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया। यही पहला तकब्बुर था, यही पहली झूठी बरतरी थी, एक ऐसा बुत जो उसने खुद अपने अंदर बना लिया था। अब अज़ाज़ील का दिल पूरी तरह खुलकर सामने आ चुका था। जो कुछ उसने सदियों की इबादत के पर्दे के नीचे छुपाया हुआ था, वो सब अल्लाह के हुजूर खुल गया। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहाँ से, तू रद्द किया गया है और तुझ पर कयामत के दिन तक मेरी लानत है। अज़ाज़ील की निजात का मौका खत्म हो गया, लेकिन उस लम्हे जब उसे फौरन मिटा दिया जाना चाहिए था, उसने एक आखिरी दरखास्त की, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई मुकर्रर वक्त तक। फिर इब्लीस ने कहा, क्योंकि तूने मुझे गुमराह होने दिया, मैं इनके लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। मैं इन पर आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, और तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहाँ से, जलील और धक्के दिया हुआ। जो उनमें से तेरा साथ देगा, मैं तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। इमाम तबरी रहीमुल्लाह के मुताबिक जलील और धक्के दिया हुआ का मतलब ये भी है कि उससे वो हुस्न छीन लिया गया जो उसे देखने में मलकूत जैसा बनाता था। अज़ाज़ील चाहता तो तौबा कर सकता था, वो उसी लम्हे सजदे में गिर सकता था, शर्मिंदा होकर रो सकता था, मगफिरत मांग सकता था, लेकिन अब वो अल्लाह की इबादत नहीं करता था, वो अपने तकब्बुर की इबादत कर रहा था। इसीलिए अल्लाह ने उसे फरिश्तों के मकाम से गिरा दिया, उस रहमत से दूर कर दिया जिसका वो मजा चख चुका था। उसका लकब, उसका रुतबा, उसकी इज्जत सब छीन ली गई। अब वो अज़ाज़ील नहीं रहा, अब वो इब्लीस था। रद्द किया गया, लानती, नूर से दूर किया गया।